background is very nice. It's black. आवाज आती है। हाँ जी। बैकग्राउंड इज ऑल्सो वेरी नाइस, यस। और उनकी येलो कलर की ड्रेस भी कितनी अच्छी लग रही है, और राधा एंड कृष्णा के पीछे से ग्लो कर कर एक क्राउन Yellow बना हुआ color is the favorite of Krishna. is Krishna's favorite. Yes, yes, Nishika Mataji. Hari Bol. Perfect. माता जी कल राधा रानी का फेवरेट कलर था ब्लू और आज कृष्णा जी का फेवरेट कलर है येलो। Yes, हाँ, how many of you knew कि राधा रानी का फेवरेट कलर ब्लू है? राधा रानी का फेवरेट कलर ब्लू है, किस लिए? हाँ, वेरी नाइस वानी माता जी, क्योंकि वो कृष्णा के कलर से रिजेंबल करता है ना, इसलिए राधा रानी का फेवरेट माता जी कलर मेरा फेवरेट कलर भी बचपन से ब्लू ही है। मेरा भी। yes, Ma'am, yes. my favorite color is blue. yes. और बलराम जी का फेवरेट कलर भी ब्लू है। Ma'am, which color is Balram's favorite? Blue. See? Okay, so we'll now do Mangla Charan. So मैं भूल गई वानी माता जी, वो प्रणाम मंत्र किसने करना था? प्रीति माता जी ने। माता जी मैंने तो राधा रानी का प्रणाम मंत्र करना था। माता जी प्रीति माता जी हाँ, प्रभुपाद जी का थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रीति माता जी, प्रीति माता जी, आप will you start with the Mangla Charan? Yes, ma'am. Yes. नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषण शून्यवादी पाश्चादेशितारिणे। Hari Bol. Thank you so much, Preeti Mataji. So we'll do Krishna Pranam Mantra. ये किसने करना था? शीतल माता जी ने करना था, वाणी माता जी प्रीशा माता जी। प्रिशा माता जी ने करना था। ओके यस माता जी। ओके ओके। पक्का ना? यस माता जी, उन्होंने ही कहा था। प्रांजल माता जी ने करना था, सॉरी। हरे कृष्ण माता जी प्रांजल की माता ध्वनि में जी। एक जैसे। हाँ, यस यस। प्रांजल माता जी, you can unmute yourself and you can. Yes, ma'am. हाँ, thank you. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। Hari Bol. Thank you, Pranjal Mata ji. So we'll do Radha Rani Pranam Mantra. Vani Mata ji, yes. तप्त कांचनन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हरे प्रिय प्रणमामि हरे प्रिय प्रणमामि हरे प्रिय प्रणमामि हरे प्रिय। कौन से प्रभु जी क्या, कौन सॉन्ग में क्या नाम है? GKD। GKD। Yes, GKD. Okay. So this all of us can do together. Let me unmute everybody. So together all of us can say Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। Hari Bol. Thank you everyone. So before we start with our today's class, we'll do a quick recap of the chapters we've done. So हम आधी भगवत गीता हम कवर कर चुके हैं। हाँ, yes, definitely you can. So so we've done 9 chapters out of 18 chapters. यानी हम आधी भगवत गीता complete कर चुके हैं। तो the secret about हमें last time भगवान श्री कृष्ण ने हमें most confidential knowledge बताया था, right? The secret. तो और हमें ये भी पता है कि
जो चैप्टर का नेम है वो चैप्टर के बारे में बताते, तो अगर हमें चैप्टर का नाम भी पता हो सो विल बी एबल टू रिलेट कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस चैप्टर में क्या बताया था. ठीक है. So do you all remember the names of the chapter? Shall I Yes, Mataji. continue sharing or Yes, shall I stop Mataji. sharing? Yes, Mataji. Shall I stop Yes, sharing? Okay, ठीक Yes, है. Mataji. Hari bol. Okay. So chapter 1. Observing the Army army in the battleground of battlefield of Kurukshetra. 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 Hari bol. Chapter 2. Content of Gita summarize. 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 Very Summarize. nice. Hari bol. Hare Krishna Ayushman Prabhuji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Chapter 3. Karma Yoga. Karma Yoga. Oh, yes, perfect. Chapter 4. Transcendental knowledge. Transcendental knowledge. Transcendental knowledge. Hari bol. Okay, chapter 5. Karma Yoga. Karma Yoga. Action in Krishna Krishna consciousness. Action in Krishna. Yes, perfect. Hari bol. Then we have, Jnana Yoga. Yoga. yes, chapter 6, Dhyan Yoga. Then we have chapter 7. Knowledge of absolute. Knowledge of the Knowledge Supreme. of Absolute. Perfect. Then we have chapter 8. attaining the Supreme. Yes, attaining the supreme. Then we have chapter 9 that we did last The most yesterday. confidential knowledge. Confidential knowledge. Knowledge. Yes. Confidential knowledge. Hari bol, Hari bol. So does anybody wants to do all the 9 chapters together? Mataji, can I? Ma'am, can I? Okay, so first, let Sheetal Mataji do first. And then Yes, Mataji. today we'll do a lot of revision on the chapter name. ठीक है? So Sheetal Mataji, you can do first and then आगे भी हम बहुत बार करेंगे. ठीक है? Yes, go ahead. Observing the army in the battlefield of Kurukshetra. Very good. Second chapter, content of Gita summarized. Very nice. Chapter 3, Karma Yoga. Chapter 4, Transcendental Knowledge. Chapter 5, Karma Yoga, Action in Krishna's Consciousness. Chapter 5, Dhyan Yoga. Chapter 6, Attaining Knowledge of Absolute. Yes. Chapter 8. 7 होगा माताजी. नहीं मैं एक डबल हो गया कोई बात नहीं. Chapter 8. Chapter 8, Attaining the Supreme. Yes. Chapter 9, The Most Confidential Knowledge. Yes, Hari bol, Hari bol, Sheetal Mataji. Very nice, perfect. Thank I'm you, so Mataji. happy that all of you remember. Okay, Aditi Mataji, you also want to do? हाँ, Nishika Mataji, don't worry, we'll do it. अभी आगे भी करेंगे, ठीक है? So let two Matajis do now, and then we'll do in the middle of the chapter also, ठीक है? Aditi Mataji, you want to do? Yes. Yes, Mataji. Observing the armies in the battlefield of Kurukshetra. Yes. Chapter 2, contents of Gita summarized. Yes. Chapter 3, Karma Yoga. Very nice. Chapter 4, transcendental knowledge. Yes. Chapter 5, Karma Yoga, action in Krishna. consciousness. Yes. Chapter 6, Dhyan Yoga. Chapter 7, Knowledge. Knowledge of the absolute. Very Chapter nice. 7, Attaining the Supreme. Yes. And chapter 9. Chapter 9, The Most Confidential Knowledge. Hari bol, Hari bol, Aditi Mataji. Very, very nicely done. Thank you so much. So we'll do this while we are doing the chapters. हम आगे भी करेंगे, ठीक है? Today we'll do a lot more. Okay, so let me share my screen and let's see what is today's chapter. So आज के chapter का क्या नाम है? So आज के chapter का नाम है The Opulence of the Absolute. Opulence. Opulence का मतलब होता है हिंदी में बोलते हैं ऐश्वर्य. वो ऐश्वर्य रे वाली ऐश्वर्य नहीं, ऐश्वर्य भगवान के जो ऐश्वर्य है ऑपुलेंस है वो. सो द ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट. अब ऑपुलेंस क्या क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, देन वी विल डू व्हाट इज द एक्शन. तो भगवान जो वर्ड होता है ना भगवान, वो दो चीजों से बना होता है. भग
+1। तो लेट मी आस्क यू, धनवान का क्या मतलब होता है? माता जी इसके पास बहुत धन धनी है। हाँ, यानी धन और वान, यानी जो धन, जिसके पास धन की, मतलब जिसमें आपका बहुत धन होता है वो धनवान होता है। ऐसे कोई और बता सकते हो कोई और वर्ड? हाँ, यस। जिनके पास भग हो वो भगवान होते हैं। हाँ, जिनके माता जी अंदर बुद्धिमान। माता जी बुद्धिवान, विद्वान। यस, माता जी विद्वान, यस, मैम बलवान। बलवान, यस यस। तो इनमें जो बलवान है उसमें बल होता यशवान। है, यशवान जिसमें यश, जिसके पास यश होता है। इनफैक्ट आप लोग आंसर दे रहे हो, बुद्धिमान जिसमें बुद्धि होती है, धनवान जिसके पास धन होता है ना। और सौंदर्य के लिए क्या यूज करते हैं? माता जी विद्वान। विद्वान, हाँ, विद्वान बेसिकली इंटेलिजेंट, जो बहुत इंटेलिजेंट होता है ना। सो ऐसे कलर की ऐसे कर 6 ऐश्वर्य होते हैं, और ये ऐश्वर्य वही है जो अभी आपने बताया, जैसे कि बलवान, बुद्धिवान, धनवान, राइट। सो इट इज गिवन दैट भगवान मीन्स वन हु possesses 6 opulence in full, यानी भगवान वो होते हैं जिनके पास ये जो 6 ऐश्वर्य है वो पूर्णता रूप में होते हैं, पूर्ण रूप से, यानी कि ऑल वेल्थ, ऑल स्ट्रेंथ यानी बलवान, वेल्थ मतलब धनवान, ऑल स्ट्रेंथ यानी बलवान, ऑल इन्फ्लुएंशियल, किसी ने भी बोला था ना, एक और बोला था, जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बेसिकली, विद्वान। विद्वान, यस, विद्वान, ऑल विजडम, ऑल ब्यूटी यानी कि जिसमें बहुत सौंदर्य, और रिनंसिएशन यानी जो त्याग भी कर सकते हैं, राइट। तो ये जो 6 ऐश्वर्य जो जिसमें पूरे होते हैं वो भगवान कहलाया जाता है। इन्फ्लुएंस मतलब इसमें फेम होता है। सो एनीबडी हु हैज नॉलेज, ब्यूटी, वेल्थ, वेल्थ एंड हेल्थ एंड फेम एंड रिनंसिएशन, तो ये जो छह की 6 चीजों जिसमें होती है वो भगवान है, क्योंकि ही इज फुल इन ऑल 6 opulences। अब इस पूरे मटेरियल वर्ल्ड में ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें सारी 6 की चीजें 6 पूरी की पूरी हो। जैसे ऐश्वर्या राय, शी इज ब्यूटीफुल बट शी इज नॉट पावरफुल, है ना। ऐसे नहीं कि क्योंकि उसके बहुत सारी बाइसेप्स है और शी इज वेरी पावरफुल, ऐसा नहीं है। somebody who is a wrestler might be very powerful but might not be very beautiful, है ना। जैसे खली, he is very powerful but definitely he is not beautiful, ठीक है। somebody might be intelligent but not be very wealthy, but भगवान वो है because he is the source of all these 6 opulences, so he has all these opulences in full। तो आज why we are discussing this, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है हमारे चैप्टर का नाम है द ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट। तो आज हमें भगवान अपने ऑपुलेंस के बारे में बताएंगे कि व्हाई ही इज भगवान, व्हाई कृष्णा इज भगवान। कृष्णा विल हिमसेल्फ टेल दैट व्हाई आई एम द ओरिजिन, ठीक है। सो आज के चैप्टर का नाम है द ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट। अब ऑपुलेंस जो है, ऑपुलेंस आप या तो पूरे 6 के 6 जो ऑपुलेंस उसका एक्शन कर सकते हो, या आप उनमें से कोई भी एक उसका एक्शन करके कर सकते हो, ठीक है। सो जो हमारे ऑपुलेंस है, माता जी हम ऐसे भी कर सकते हैं पावरफुल का। हाँ, पावरफुल कैसे भी कर सकते हैं, यस। और हमारे सबसे पहले स्ट्रेंथ, सो स्ट्रेंथ ऐसे कर सकते हैं, फेम ऐसे कर सकते हैं, ही इज वेरी फेमस, है ना, या ऐसे भी कर सकते हैं फेमस। माता जी ऐसे ब्यूटीफुल यस यस वानी माता जी, वेरी नाइस, ही इज फेमस। माता जी ऐसे ब्यूटीफुल भी कर माता सकते जी हम ब्यूटीफुल हाँ, में जैसे श्याम beautiful- सुंदर रूप में करते हाँ, हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, यस। और वेल्थ ऐसे कर सकते हैं, वेल्थ, लॉट ऑफ मनी, है ना। और Yes, नॉलेज ma'am. के लिए ऐसे कर सकते हैं, Yes, ma'am. और रिनाउंसिएशन के लिए ऐसे कर सकते हैं कि मतलब उनको कोई वो कोई लगाव नहीं है किसी चीज से, ही इज डिटैच्ड फ्रॉम एवरीथिंग, माता राइट। जी फिर हम वो ध्यान योग वाला एक्शन भी कर सकते हैं उसमें। हाँ, यस यस। सो वी विल से द ऑपुलेंस, ऑपुलेंस में हम 6 चीजें कर सकते हैं। द ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट, ठीक है। सो ऑपुलेंस ऑफ द, आप एक भी कर सकते हो। हाँ, अगर 6 के 6 मुश्किल है तो हम कोई एक भी कर सकते हैं, कोई भी एक ऑपुलेंस आप चूज कर सकते हो। ऑपुलेंस ऐसे भी कर सकते हो, ये ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट, ठीक है। व्हाटएवर एक्शन यू आर कंफर्टेबल विद, Any two also. यू कैन डू एनी 1 2 3 6 भी कर सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल हो, ठीक है। सो वो बात अच्छा था जो वानी माता जी ने करा था, वानी माता जी दोबारा करना। हाँ, ऑपुलेंस, द ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट,
है ना, क्योंकि जो फेमस होता है उसकी फोटोग्राफ आर्टिकल छपता नहीं न्यूज़पेपर में, फोटोग्राफ्स आती है मैगजीन में. सो द ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट. ठीक है, ओके, इज इट फाइन विद एवरीवन? अनन्या माता जी ठीक है? Yes, ma'am. Yes, mother. ठीक है, परफेक्ट. सो आज का हमारा चैप्टर है ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट, यानी आज भगवान श्री कृष्ण अपने ऑपुलेंस यानी अपनी ऐश्वर्य के बारे में बताएंगे अर्जुन को. सो लेट्स सी आज कृष्ण अर्जुन को क्या बता रहे हैं. सो कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि आई एम द वन फ्रॉम विच द इंटायर यूनिवर्स, यानी कि पूरा मटेरियल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड मेरे अंदर से आता है. यानी कि जो सब कुछ हम देख रहे हैं, एनीथिंग, आपके आसपास कुछ भी पड़ा तो आप उसको उठा सकते हो. जैसे मेरे पास ये पेन है या ये ग्लास है जिसके अंदर पानी है, तो ये सब कुछ, चाहे वो पानी है, चाहे ये ग्लास है यानी कि जो मेटल है, चाहे ये पेन है, चाहे ये पेन की इंक है, चाहे हमारे बाल है, राइट, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम कृष्णा, एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय कृष्णा. चाहे ये एयर है जो हमारे आसपास है जिससे हम सांस ले रहे हैं, है ना, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम कृष्णा. ठीक है, सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट कृष्णा टेल्स टू अर्जुन. नाउ वी विल सी the process of creation of the universe, कि universe बना कैसे. How many of you want to know universe बना कैसे? हरी बोल सीता माता जी, वाणी माता जी, निशा माता जी, and nobody else wants to know? Yes, वाणी माता जी. Mataji, that's why Vishnu is known as operator of the universe. Yes, and you will get to know कि विष्णु भी एक ही नहीं है, विष्णु भी बहुत सारे विष्णु हैं. माता तो जी, अभी हम वो देखेंगे. कोई जिसको पता है वो सीक्रेट मत रिवील करना. ओके, यस शीतल माता माता जी. जी, बट जो महाविष्णु का आपने नेम बताया था उस समय, तो माता जी आप बता देना, इस बार मैं भूल हाँ, गई. यस, आई विल टेल. सो एक विष्णु नहीं, विष्णु भी डिफरेंट लेवल के विष्णु है, एंड यू विल गेट टू नो टुडे. ठीक है, सो आर यू ऑल रेडी? डू यू वांट टू नो हाउ द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड? यू कैन Yes, अनम्यूट योरसेल्फ. Mataji. यस एंड से यस. Yes, Yes, mother. Mataji. यस माता जी. सो अब इसको ना ध्यान से सुनना. आई विल प्ले अ रिकॉर्डिंग एंड आई विल शो यू समथिंग. ये कौन है? Krishna. कृष्णा. ओके. One day, in the spiritual world, which is far, far away from here, Lord Krishna did something very spectacular. वॉइस इज नॉट क्लियर. आवाज क्लियर नहीं है. अगर Mataji, ये तो आई विल. बीच से कट रही है आवाज. अच्छा ठीक है, आई माता विल. जी, विदित प्रभु जी की आवाज है ना? हाँ, विद प्रभु जी की आवाज है. यस, या. सो एक बार की बात है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जो हम मटेरियल वर्ल्ड से बहुत दूर है, जहाँ कुछ भी नहीं था, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे देयर वाज नथिंग, देयर वाज नो मटेरियल वर्ल्ड. भगवान श्री कृष्ण ने कुछ सोचा. उस समय भगवान श्री कृष्ण वाज अलोन एंड देन ही थॉट समथिंग. ही थॉट दैट आई नीड टू एक्सपैंड माई सेल्फ. तो उन्होंने अपने आप को एक्सपैंड करा. ठीक है, उन्होंने सबसे पहले अपने आप को बलराम जी के रूप में एक्सपैंड करा. ठीक है, फर्स्ट एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा वाज बलराम जी. उसके बाद ही एक्सपैंडेड हिमसेल्फ इनटू something which you will get to know. Okay, sorry. He expanded himself into another person. This form of Krishna had 4 arms and was none other than Mahavishnu. Mahavishnu is also known as Karnodakshai Vishnu. Okay, are you able to hear or do you want me to speak? It's Yes, clear now. mother. Please repeat. सुनाई दे रहा है बेटा? यस माता जी. हाँ, आई विल ऑल्सो रिपीट, बट आपको सब सुनाई दे रहा है. सो सबसे उसके बाद भगवान कृष्ण ने जब बलराम जी के रूप में एक्सपैंड करा, उसके बाद उन्होंने अपने आप को एक्सपैंड करा एज महाविष्णु. सो सबसे पहले जो विष्णु एक्सपैंड हुए थे भगवान श्री कृष्ण, उनका नाम है महाविष्णु, और उनको कर्णोदक्षाई विष्णु से भी बोला जाता है, क्योंकि वो कर्णोदक्षाई ओशन में लेटे होते हैं. ठीक है, सो इज कॉल्ड कर्णोदक्षाई विष्णु और महाविष्णु. सो ही हैज 2 नेम्स. ओके, उसके बाद क्या हुआ, जब कर्णोदक्षाई विष्णु है वो लेटे हुए थे.
Now Mahavishnu lie down. सो जब महाविष्णु लेटे हुए थे, आपको दिखाई दिया है कि महाविष्णु के अंदर से क्या निकल रहा है? Was anybody able to see? माताजी यूनिवर्स, जी क्लाउड्स। जी यूनिवर्स। हाँ, पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? यस यस, तो उनके अंदर से छोटी छोटी बॉल्स निकल रही है ना? आप देख रहे हो महाविष्णु के अंदर से छोटी छोटी बॉल्स निकल रही है। कहाँ से निकल रही है? निकल रही है ये भगवान विष्णु महाविष्णु के स्किन के पोर्स, छेद से निकल रही है। आपको सबको पता है हमारे स्किन के अंदर पोर्स होते हैं। यस माताजी, यूनिवर्स निकल रहा है। हाँ यस, हमारे जो स्किन में पोर्स होता है उससे तो क्या निकलता है? पसीना निकलता है ना। जब बहुत गर्मी होती है तो पसीना हर जगह से, यहाँ से टपक रहा होता है, वहां से टपक रहा होता है पसीना, है ना। लेकिन महाविष्णु के स्किन के अंदर से यूनिवर्स निकल रहे हैं, यूनिवर्सल बबल्स निकल रहे हैं। यानी कि वो गोल गोल, बिल्कुल वैसे अगर आप गुब्बारा फुलाते हो ना। जुपिटर नहीं, जुपिटर भी नहीं निकल रहा, यूनिवर्स निकल रहे हैं। जुपिटर तो उसके अंदर होता है, जुपिटर इज अ प्लैनेट, एक्चुअली यूनिवर्स निकल रहे हैं। जैसे कभी आप लोग वो सोप का वो बनाते हो ना, बबल्स बनाते हो, सोप के बबल्स आपने बनाए? माताजी एकदम ऑर्बिट के टाइप के हैं। एस्ट्रॉइड्स है ना। हाँ, एस्ट्रॉइड्स भी नहीं है, एस्ट्रॉइड से भी ह्यूज है। एक यूनिवर्स के अंदर एस्ट्रॉइड्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, सन्स होते हैं, मून होते हैं, बड़े सारे स्टार्स होते हैं। तो वो यूनिवर्स निकल रहा है, यानी उनकी छेद में से एक पूरा यूनिवर्स निकल रहा है, यानी कि ऐसे करोड़ों यूनिवर्स है। तो वो कैसे निकल रहे हैं? वो छोटे छोटे बबल्स के रूप में निकल रहे हैं। हमारे लिए तो बहुत बड़ा यूनिवर्स है, भगवान महाविष्णु के लिए तो ऐसे छोटा सा बबल है, एक बिल्कुल माताजी ऑर्बिट डॉट। की तरह। हाँ यस यस, सो डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन यू। ये प्लैनेट्स नहीं है, ये these are not broken planets, these are not stars, these are moons। ये पूरा यूनिवर्स निकल रहा है, एक खाली बबल है। आप सोचो एक खाली गुब्बारा है, गुब्बारा फुलाते हैं ना हम गोल गोल, तो सोचो एक खाली गोल सा गुब्बारा है। ठीक है, अब अभी इतना याद रखना कि महाविष्णु के पोर्स के अंदर से यूनिवर्स निकल रहे हैं जो खाली बबल्स की तरह है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि महाविष्णु जो है मटेरियल, जो महाविष्णु मटेरियल क्रिएशन करते हैं, यानी कि जो मटेरियल रिक्वायर्ड होता है उसकी क्रिएशन करते हैं। जो 5 चीजें होती हैं, हम 5 तत्वों से बने, आपको पता है? यस माताजी। यस माताजी। कौन कौन से 5 तत्व हैं? माताजी फायर, अग्नि, वायु, और हवा। एयर। हाँ, अग्नि, वायु, पानी, आकाश और धरती। तो ये 5 चीजें, तो ये 5 चीजों की क्रिएशन फिर महाविष्णु करते हैं, 5 चीजों की क्रिएशन करते हैं। तो पहले वो खाली बबल्स निकलते हैं उनकी बॉडी में से, फिर ये 5 चीजों की क्रिएशन करते हैं। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद And from this, many universes form like bubbles. These bubbles came out of Mahavishnu's skin holes and rested on his body. हाँ, But his body always stays spiritual. It never becomes material like the universe bubbles. तो ये आपको दिख रहा है जैसे भगवान श्री कृष्ण के अंदर से महाविष्णु निकले, महाविष्णु के अंदर से ये बबल्स निकल रहे हैं, और ये बबल्स ना भगवान महाविष्णु की बॉडी के ऊपर रेस्ट करते हैं, यानी कि हवा में लटके रहते हैं। दे रेस्ट ऑन द बॉडी ऑफ महाविष्णु, यानी कि उनके बॉडी पे जाकर रुक जाते हैं। ठीक है, और कहा जाता है कि भगवान विष्णु की एक सांस से, जब भगवान विष्णु एक सांस बाहर लेते हैं तब इतने सारे बबल्स निकलते हैं, और जब भगवान विष्णु एक सांस अंदर लेते हैं तो ये सारे बबल्स भगवान विष्णु के अंदर चले जाते हैं। यानी कि उस समय प्रलय आती है और सारे यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय होकर भगवान विष्णु के अंदर चले जाते हैं। फिर भगवान विष्णु सांस बाहर लेते हैं, फिर उनकी पोर्स में से इतने सारे यूनिवर्स बाहर निकलते हैं। ठीक है, और आपको पता है भगवान विष्णु की एक सांस एक सांस जो बाहर लेते हैं, बाहर निकालते हैं भगवान महाविष्णु, वो कितनी बड़ी है? विच इज इक्वल टू 432 करोड़ ईयर्स, ह्यूमन ईयर्स। यानी कि 432 करोड़ ह्यूमन ईयर्स में महाविष्णु की एक सांस बाहर निकलती है। ठीक है, और यू कैन से दैट इज 1 डे ऑफ ब्रह्मा। हाँ जी, इतने टाइम पीरियड के बाद वो सांस लेते हैं? हाँ, वो नहीं, एक्चुअली क्या होता है, क्योंकि हम इतने छोटे हैं ना, तो हमारे लिए वो टाइम पीरियड बहुत बड़ा लगता है। पर आप सोचो कि जैसे कि एक चींटी है, हम कितने अप्रोक्सीमेटली 70-80 साल जीते हैं, एक चींटी कितने साल जीती है? मैक्स 1 साल भी पता नहीं पूरी जीती नहीं जीती, कुछ महीने जीती, कुछ दिन जीती है ना। तो वो चींटी के लिए, हाँ यस, वो चींटी के लिए हमारी लाइफ कितनी बड़ी है ना। हम जब एक बार सांस लेते हैं, वो चींटी पता नहीं क्या क्या कर लेती है।
ऐसे Yes. ही क्योंकि हम भगवान के सामने बिल्कुल इतने छोटे हैं ना, तो हमें लगता है कि भगवान एक सांस इतने लंबे टाइम तक लेते रहते हैं, लेकिन भगवान के लिए दैट टाइम इज नथिंग, है ना। सो भगवान की एक सांस यानी ब्रह्मा जी का एक दिन, मॉर्निंग टाइम, ब्रह्मा जी का मॉर्निंग और नाइट अलग है, तो ब्रह्मा जी का एक दिन इज इक्वल टू 432 करोड़ years of human life. ठीक है, isn't it amazing? और ब्रह्मा जी जीते 100 साल तक जीते। मतलब ओके, जी वो जीते ही 100 साल तक है, तो उनका एक दिन इतने साल का। हाँ, यस यस, इमेजिन करो। ठीक है, आपको समझ आ गया पहले कौन निकले? अभी आगे भी है, डोंट वरी, अभी आगे भी और विष्णु आएंगे, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ, आई एम पॉजिंग हियर। पहले निकलते हैं महाविष्णु, और महाविष्णु जो है उनकी पोर्स में से निकलते हैं यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड निकलते हैं। अब ब्रह्मांड के अंदर क्या होता है? भगवान के अंदर आते हैं Mahavishnu entered each of these universe bubbles as Garbhodaksha Vishnu. हाँ, फिर से महाविष्णु क्या करते हैं? अब इतने सारे ब्रह्मांड निकले हैं, वो जो ब्रह्मांड है उनको भी तो मैनेज करना है, तो महाविष्णु क्या करते हैं? अपने आप को एक्सपैंड करते हैं एज गर्भोदक्षय विष्णु। तो वो हर एक बबल के अंदर चले जाते हैं, हर एक, सोचो अब एक सोप का बबल है, उसके अंदर हर एक के अंदर चले गए, तो महाविष्णु देन एक्सपैंड्स हिमसेल्फ एज गर्भोदक्षय विष्णु। अब आपको सेकंड नाम याद रखना है, ठीक है। पहला नाम था महाविष्णु, जिनको कर्णोदक्षय विष्णु भी बोला जाता है, और उसके बाद वो एक्सपैंड होते हैं गर्भोदक्षय विष्णु, और गर्भोदक्षय विष्णु हर एक बबल के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? इज इट फाइन? यस माता जी। अब Yes, गर्भोदक्षय Mama. विष्णु क्या करते हैं? गर्भोदक्षय विष्णु वहां जाते हैं और These universes are just filled with the darkness and space, thought Lord Vishnu as he looked around. तो वो जब आसपास देखते हैं, जो गर्भोदक्षय विष्णु देखते हैं, बबल के अंदर तो आगे गर्भोदक्षय विष्णु, अब वो देखते हैं कि यहाँ तो सिर्फ हवा ही है, स्पेस है, कुछ और तो है ही नहीं। वो इधर उधर देखते हैं, बोलते हैं मैं रेस्ट कहाँ करूंगा, मुझे भी तो आराम करने की जगह चाहिए ना। तो फिर वो क्या करते हैं? And there is no resting place. So immediately he filled each of these universes halfway with water from his own perspiration, and this became an ocean. This ocean was also the Garbhodaka ocean. ठीक है, तो महाविष्णु क्या करते हैं? वो अपने जो हर एक महाविष्णु, हर बबल के अंदर, हर गुब्बारे के अंदर, सोचो एक महाविष्णु है, और हर वो सोचते हैं कि मेरे लिए रेस्ट करने की तो जगह नहीं है, तो वो क्या करते हैं? अपने पसीने से हर एक गुब्बारे को, हर एक यूनिवर्स को आधा पानी से भर देते हैं। तो कभी आपने आई एम श्योर बचपन में ऐसे गुब्बारा फैलाया जिसमें आपने आधा पानी भरा होगा और आधा आधा हवा रहनी दी होगी, क्योंकि वो ना फटता नहीं है जल्दी से। Yes, आपने ma'am. करा है ना? हाँ, तो बिल्कुल वैसा ही एक यूनिवर्स होता है। यूनिवर्स जो होता है वो आधा पानी से भरा होता है और आधे में हवा होती है, और जिस हिस्सा में हवा होती है वहां पर प्लैनेट्स होते हैं, वहां पर सूरज होता है, वहां पर तारे होते हैं। ठीक है, सो I think this ocean is called Sheer Sagar. इज कॉल्ड गर्भोदक्षय विष्णु, गर्भोदक ओशन। क्षीर सागर भी आगे आएगा क्योंकि एक और विष्णु है। ओके, माता जी आई नो। हाँ, सो दिस इज गर्भोदक ओशन, और ये विष्णु को बोला जाता है गर्भोदक्षय विष्णु। अब गर्भोदक्षय विष्णु बोलते हैं चलो मैंने पानी तो डाल दिया, अब मेरे को रेस्ट करने की जगह भी मिल गई, शेषनाग भी आ गए, लक्ष्मी जी भी आ गए मेरी सेवा करने के लिए, लेकिन अब क्रिएशन करनी है ना, यहाँ पर प्लैनेट्स बनाने हैं, मून बनाना है, सन बनाना है, यू नो मटेरियल चीजें बनानी है, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस को लेकर आना है, तो अब क्या करें? तो वो मेडिटेट करते हैं। जब वो मेडिटेट करते हैं तो आपको पता है कौन निकलते हैं? हु डज द क्रिएशन? ब्रह्मा जी। हाँ, ब्रह्मा जी। और आपने कभी नोटिस करा है ब्रह्मा जी कहाँ से अपीयर होते हैं? कहाँ क्या कहा माता जाता है? जी गर्भोदक्षय नाक विष्णु जी के से, नेवल से। नेवल से। हाँ, यस। तो हर एक वो जो बबल था, हर एक जगह बलून था, हर एक बलून के अंदर एक गर्भोदक्षय विष्णु है, और हर एक गर्भोदक्षय विष्णु की नेवल से, नाभि से एक लोटस निकलता है, और उस लोटस से निकलते हैं ब्रह्मा ब्रह्मा जी। जी।
this is how Brahma ji appears on the lotus of each planet, each universe. हर यूनिवर्स में ब्रह्मा जी निकलते हैं। और ब्रह्मा जी क्या करते हैं? ब्रह्मा जी करते हैं create everything else in the universe bubbles using Lord Krishna's powers. तो ब्रह्मा जी क्या करेंगे? यूनिवर्स के अंदर सारी बाकी सारी चीजें क्रिएट करेंगे, जैसे कि प्लैनेट, सन, मून। और वो कैसे क्रिएट करेंगे? उनको ही क्रिएट करने की शक्ति कौन देगा? उनको क्रिएट करने की शक्ति देंगे भगवान श्री कृष्ण। सो भगवान, यस, बिकॉज ही इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, ही इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। तो उनकी शक्ति को इस्तेमाल कर ब्रह्मा जी बाकी सारी क्रिएशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद This creation is maintained by Kshirodakshay Vishnu. हाँ, अभी किसी ने पहले बोला था ना, somebody was saying कि जो विष्णु जो है वो मेंटेन करते हैं, वो सारे क्रिएशन को मेंटेन करते हैं। तो वो क्षीरोदक्षय विष्णु है जो सारे क्रिएशन को मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड विष्णु है, थर्ड विष्णु निकलेंगे। अब हर गर्भोदक्षय विष्णु के अंदर से निकलेंगे क्षीरोदक्षय विष्णु। Also enters every living being and even every atom as Paramatma or Super Soul. हाँ, तो हम परमात्मा की बात करते हैं ना, तो जो हमारे हृदय में परमात्मा है वो एक्चुअली क्षीरोदक्षय विष्णु है, और वो हर लिविंग एंटिटी के अंदर होते हैं। ही एक्सपैंड्स, गर्भोदक्षय विष्णु एक्सपैंड्स हिमसेल्फ अनलिमिटेडली इनटू, जितने भी जीव हैं उनके हृदय के अंदर एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, सो इजंट इट अमेजिंग? आप इमेजिन कर सकते हो कितना ह्यूज क्रिएशन, और हम उस क्रिएशन के कितने छोटे से पार्ट हैं, है ना? हाउ डू यू फील अबाउट इट व्हेन यू हियर इट? Mataji, we just feel like ants in human world. yes, मेरे को बहुत बार लगता है कि हम ना एक एंट लाइफ जी रहे हैं, एक चींटी की जिंदगी जी रहे हैं हम। एक्चुअली में यूनिवर्स से भी छोटे होंगे। यस, सैरी बोल। सो आज कृष्णा अर्जुन को यही बता रहे हैं। कृष्णा अर्जुन को बता रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्वितः। सो कृष्णा अपने ऑपुलेंस यानी अपने भगवत्ता के बारे में बता रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन हे सी, देखो मेरा ऑपुलेंस कितना है, यू नो। सो लेट्स सी हु वांट्स टू रीड। संस्कृति माता जी, आप इंग्लिश में पढ़ दोगे? Yes, Mataji. Yeah, thank you. I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from me. The wise who perfectly know this engage in my devotional service and worship my all their hearts. हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू सो मच संस्कृति माता जी। एंड प्रिशा माता जी, आप हिंदी में पढ़ दोगे बेटा? सॉरी प्रिशा माता जी, हाँ, कैन यू रीड इन हिंदी बेटा? यस माता जी। हाँ, आपको मेरी आवाज आ रही है माता जी? हाँ बेटा, अब आ रही है। हाँ, यस। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझी से अद्भुत है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू सो मच प्रिशा माता जी। जय प्रभु जी, आप भी हिंदी में पढ़ोगे एक बार? मेरी आवाज आ रही है ना अच्छे से? हाँ, आ रही है बेटा। हाँ, बस थोड़ी सी हल्की सी ब्रेक हो रही थी। हाँ, जय प्रभु जी, आप पढ़ दोगे एक बार हिंदी में? And then Ananya Mataji wanted to recite the shloka, na? I will unmute you. Yes. After Jai Prabhuji, whenever you're ready. जब भी आप तैयार हो। Yes, Mataji. Yes, हाँ। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक
प्रत्येक वस्तु वस्तु मुझसे उद्भत हाँ है, बुद्धिमान जो बुद्धिमान यह भली भाली भली जानते हैं, वे मेरी प्रेम भक्ति भक्ति में लगते हैं तथा यस हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। हाँ, हरि बोल, हरि 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 बोल। जय प्रभु जी, थैंक यू सो मच। Ananya Mataji wanted to recite the shloka. Yes, Mataji. हाँ, go ahead बेटा. 1 second, sorry. Let me go back. Screen hang हो गई. Okay, here. Oh, Ananya Mataji आप mute हो गए क्या? Sorry. अहम सर्वस्य प्रभुवो मत् सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भुवा समन्वितः। यस, परफेक्ट। सो भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं? भगवान यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो ये जानता है that I am the source of everything, यानी कि जो ये इस बात को जान लेता है कि मेरे से ही सब कुछ उत्पन्न होता है। I am the source of all spiritual and material world and everything emanates from me, यानी सब कुछ मेरे अंदर से ही आता है ना। और अभी हमने देखा कैसे भगवान के स्किन से यूनिवर्सेस आते हैं। Do you all agree? सब कुछ अंदर से आता है, भगवान के अंदर से आता है ना? Yes, so everything emanates from me. The wise who perfectly knows this engages in my devotional service. यानी वो बुद्धिमान इंसान जो ये जानता है मेरी प्रेममय भक्ति करता है, मुझे वर्शिप करता है with all the hearts. So this is what Krishna is telling Arjun कि सब, hey Arjun, everything is coming from me. I am the creator of everything. So the one who wise who knows this, he worships me. ठीक है? So Kashish Mataji, you were saying कि आपके पास एक वीडियो है, आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कर देना, ठीक है? ओके माता जी। थैंक यू Kashish Mataji। माता जी बेटा। यस यस माता जी, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ यस बेटा। हाँ माता जी, अभी आपने बताया कि जो भी यूनिवर्स भगवान ने बनाया है, हाँ उसमें जो सूरज, चंद्रमा, इन सब को छोड़ के सब में हाफ में वाटर है। हाँ हाँ हाँ। तो माता जी, जो है मार्स है और बाकी प्लेनेट है, इसमें वाटर तो नहीं है। हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ। देखो, आप सोचो कि एक गुब्बारा है, गुब्बारा के आधे में पानी भरा और आधे में हवा है, ठीक है? ये इमेजिन कर सकते हो। एक जैसे हमने होली के टाइम में गुब्बारा लेते हैं ना, तो होली का एक हमने गुब्बारा ले लिया, उसको आधे पानी से भर लिया, आधे हवा से भर लिया। भुवनेश्वर जी, इतना समझ आ गया? माता जी, अब जो जिस एरिया में हवा है ना, उस एरिया में सारे प्लैनेट्स हैं। अब जरूरी नहीं है कि हर प्लैनेट के अंदर पानी हो। एक्चुअली वो जो प्लैनेट्स है वो पानी से ऊपर है। यानी आप ये कह सकते हो कि जो हमारे प्लैनेट्स जैसे सन के आसपास घूमते रहते हैं ना, इनफैक्ट वो भी 9 रेलम्स होते हैं, 9 रेलम्स होते हैं, उसके नीचे जाकर पानी है। जब आपको याद है, मैंने आपको एक स्टोरी, वराहदेव की स्टोरी, आपको पता है वराहदेव की स्टोरी? यस माता जी, आपने सुनाई थी समर कैंप में। भुवनेश प्रभु जी, आपने सुना है वराहदेव की स्टोरी? सुनी है? तो वराहदेव ने ना, एक बार क्या हुआ था, एक राक्षस था, हिरण्याक्ष, उसने धरती को गर्भों तक ओशन, पानी के अंदर डुबो दिया था। पूरी धरती को पानी ऐसे उठाया बॉल की तरह और वो पानी के अंदर डुबो दिया। तब भगवान वराह आए थे, बोर अवतार में, एक जंगली सुअर के अवतार में आए थे, और उन्होंने पानी के अंदर जाकर अपनी जो आगे की सींग है उसमें धरती को उठाकर वो पानी से बाहर लेकर आए थे। यस माता जी। ठीक है? सो बेसिकली क्या है कि सारे प्लैनेट्स के नीचे स्पेस में वाटर है।
Okay, Mataji. ठीक है? Okay. Yes, ma'am. Okay. So let's see. What do we see in this picture? आप कोई guess कर, मतलब कोई बता सकते हैं इस पिक्चर में क्या? माताजी प्रभुपाद Srila Prabhupada. हाँ माता जी हाँ, और श्रील प्रभुपाद जी क्या कर रहे हैं? What is श्रील प्रभुपाद मैम वो doing? चैंटिंग कोई माताजी को माला दे दो। चैंटिंग माला पकड़ा रहे वो हैं दीक्षा हो रही है माता जी। यस, वो दीक्षा हो रही है। हरी बोल। यस यस, कशिश माता जी, भुवनेश प्रभु जी, ये दीक्षा हो रही है, यानी कि श्रील प्रभुपाद इनिशिएट कर रहे हैं, यानी श्रील प्रभुपाद शिष्य बना रहे हैं, है ना? ओके, लेट मी शो यू वन मोर पिक्चर। इसमें क्या हो रहा है? इस पिक्चर में क्या हो रहा है? माता जी प्रभुपाद जी प्रसाद बना रहे हैं Prabhupada is chopping the tomatoes. हाँ, यस पार्थ प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद इज चॉपिंग द टोमेटो, और सिर्फ टमाटर चॉप करने के बाद वो क्या करेंगे इससे? प्रसादम बनाएंगे हाँ, यस, ही विल मेड भोगा फॉर द लॉर्ड, उस भोग लगाने के बाद फिर वो प्रसाद बन जाएगा। यस, तो वो क्या कर रहे हैं? वो भगवान के लिए सर्विस कर रहे हैं, यानी काम कर रहे हैं, है ना? ठीक है, एक और पिक्चर देखते हैं। ओके, इसमें doing the worship. माताजी Yes. doing worship. आरती. हाँ, आरती करें, वर्शिप करें, Yes, भगवान की ma'am. पूजा करें। तो Ma'am, इस this was a temple of Srila माता जी Prabhupada. कहाँ के डीटीज हैं? ये मेरे ख्याल से ना इस्कॉन के पहले वाली डीटीज हैं। माताजी मायापुर के. नहीं, इस्कॉन सॉरी वृंदावन के पहले वाली डीटीज हैं। इन द इस्कॉन श्याम सुंदर से पहले वहां पर एक डीटीज हुआ करते थे। माता तो जी माता जी अब कहाँ गए अब वो कहीं और चले गए, दोनों बनेगा गए। यस अदिति माता जी, गो अहेड बेटा। माता जी हम लोग जब अभी वृंदावन गए थे अगस्त में, तो हम लोगों ने जहाँ पे प्रभुपाद जी कुकिंग करते थे हाँ और हाँ, माताजी हमने भी देखे था। पढ़ते लिखते थे, वो वाली किचन देखी है। वहाँ पे एक हरी माता बोल। जी है, वो ना वहाँ पे रोज सेवा करती हैं। हरी हरी बोल। Yes, माता हरी- जी. जी इस्कॉन वृंदावन के पीछे वाले प्रभुपाद जी का रूम है, वहाँ पे सारे हाँ। उनके यूटेंसिल सब कुछ है वहाँ माता जी पे। हमने Yes, वहाँ पे माता जी। देखा था, एक षट गोस्वामी का मंदिर है वहाँ पे, वो किचन है, वहाँ देखा था। हाँ, यस राधा यस, गोविंद। एंड राधा माताजी जहाँ राधा दामोदर का टेम्पल है, वहां पर जीव Yes, गोस्वामी की वो समाधि भी है। वहां पर एक रूम में शिला प्रपात रहा करते थे, उनकी किचन भी अभी भी है वहां पर शिला प्रपात की वो भी है, डीटी भी है। Yes, माता जी, yes, हाँ, माता जी, राधा देखा। दामोदर का, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। माता जी वहाँ पे उनकी रियल हेयर भी है। हाँ, यस 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 यस। एंड माताजी जिस रूम में प्रभुपाद जी रहते थे माताजी, हमने देखा था मतलब बाहर से, तो उसमें उनका बेड और उनकी हाँ मतलब जो भी अटैची जो भी सब था हाँ, सब वैसे ही रखा हुआ उनके है आज भी। खाने बनाने के बर्तन, उनकी दवाइयाँ, Yes, उनकी माताजी। वॉच, सारी चीजें एंड कैसी माताजी कैसी। जहाँ पे उनकी लिखी हुई किताबें और हम्म। जो भी खाने पीने के बर्तन थे जहाँ रखे हैं वहाँ पे हमेशा कीर्तन होता रहता है। हाँ, यस एंड यस। माताजी वहाँ पे प्रभुपाद जी की स्टिक भी रखी है एक, उसके ऊपर लाइन टाइप से बना है आदमी। हाँ, यस यस, परफेक्ट। सो अभी हमने यहाँ देखा कि श्रीला प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, वो अपना सारा समय भगवान की सर्विस में लगा रहे हैं, यानी अपने BMW से, BMW गाड़ी होती है ना, ऐसे हमारे भी BMW होते हैं, बॉडी माइंड एंड वर्ड्स। हमारा शरीर से सेवा करते हैं, माइंड से भगवान को याद करते हैं, शब्दों से भगवान के बारे में बोलते हैं। तो अपना बॉडी माइंड और वर्ड्स वो भगवान BMW भगवान में लगाते हैं। तो यही एग्जैक्टली कृष्णा बोल रहे हैं। कृष्णा इज सेइंग मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयन्ता परस्परम कथ्यंश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। So Krishna is saying, Krishna is telling Arjun something very important. So yes वाणी माता जी, आप हिंदी इंग्लिश में इसको ही पढ़ोगे बेटा? Yes, Mataji. The thoughts of my pure devotees dwell in me. Their lives are fully devoted to my service, and they derive great satisfaction and bliss from always enlightening one another and covering about me. Yes, हरि बोल, वेरी नाइस। पाठ प्रभु जी, आप हिंदी में पढ़ोगे बेटा? यस माता जी। हाँ, यस। मेरे श्रद्धु भक्तों को विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। हाँ, हरि बोल, थैंक यू सो मच प्रभु जी। सो वेरी नाइस। सो कृष्णा इज सेइंग कि जो मेरे डिवोटीज होते हैं वो क्या करते हैं,
माय डिवोटीज ड्वेल इन मी, यानी कि उनको वो अपने आप जो अपनी थॉट्स है, जो अपना जो मन है वो मुझ में लगाते हैं, और अपनी पूरी लाइफ दे डिवोट टू माय सर्विस, यानी वो पूरे टाइम मेरी सेवा करते हैं। एंड इससे वो क्या करते हैं, दे डिराइव ग्रेट सेटिस्फैक्शन एंड ब्लिस। तो आप श्रीला प्रभुपाद को कभी भी देख लो, कोई भी फोटोग्राफ में देख लो, ही इज ब्लिसफुल, मतलब उनके फेस पर जो मुस्कुराहट है, इट टेल्स कि सो हैप्पी डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट। आपको पता है श्रीला प्रभुपाद सिर्फ 2 घंटा सोते थे रात को, 10 से 12, पूरे दिन में Yes, सिर्फ 2 Mataji. घंटा सोते थे, और 12 बजे उठकर फिर वो राइट बुक्स लिखना शुरू कर देते थे, यूज्ड टू राइट बुक्स, राइट, और डिक्टेट करना शुरू कर देते थे। फिर सुबह उठकर वो मंगल आरती करते थे, फिर वॉक पर जाते थे, लेक्चर्स देते थे, प्रसादम खुद बनाते थे भगवान के लिए, इतनी सारी सेवाएं करते थे। और सिर्फ 2 घंटे सोने के बाद भी उनको देख ऐसा लगता है कि ही इज सो ब्लिसफुल, वो इतना खुश है, उनके हृदय में इतना आनंद है। कभी भी ऐसे नहीं लगा कि वो बोल रहे हैं अरे क्या हो गया, अरे क्या मैं पूरे टाइम काम करते रहता हूँ, ऐसा कभी भी नहीं। ही इज ऑलवेज ब्लिसफुल, ऑलवेज मेडिटेटिंग ऑन कृष्णा, हमेशा उनके मन में भगवान श्री कृष्ण का ही ध्यान होता है। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट कृष्णा इज टेलिंग अर्जुन की मेरे शुद्ध भक्त कैसे होते हैं, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं, यानी कि वो एक दूसरे को भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताते हैं। Can तथा I मेरे read? हाँ यस 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 बेटा गो अहेड। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन में मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। यस यस, थैंक यू सो मच कन्ना माता जी। सो जैसे भगवान ने बोला एंड में परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं, यानी कि ऐसे डिवोटीज क्या होते हैं, दे फील हैप्पीनेस। किसी को ये श्लोक याद है? एक्चुअली ये जो 4 श्लोक आज हम कर रहे हैं ना, इसको चतुर्श्लोकी भगवत गीता भी कहा जाता है। भगवत गीता के चतुर्श्लोक, 4 श्लोकास। एनीबॉडी नोज दिस श्लोका? No. नो ओके डोंट वरी, ठीक है। ये 4 श्लोका है, 10.8, 10.9, 10.10 एंड 10.11, ठीक है। उसमें से एक आज हम याद करेंगे। आज हम याद करेंगे 10.10। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम् उपयन्ति ते। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण इसमें अर्जुन को बोल रहे हैं। So Nishika Mataji, please wait. Let everybody get an opportunity. So Mohit Prabhu जी आप पढ़ोगे हिंदी इंग्लिश में से कोई पढ़ोगे बेटा? Yes. Those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me. Yes, Hari bol. Thank you so much Mohit Prabhu जी. हाँ शीतल माता जी, go ahead, you can read. जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। हाँ यस, हरी बोल। जानिया माता जी, डू यू वांट टू रीड हिंदी इंग्लिश में से कोई एक बार पढ़ना चाहोगे? यस मैम, हिंदी हाँ यस, गो अहेड। यस मैम। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। हरी बोल, वेरी नाइस। निशिका माता जी आप इंग्लिश में पढ़ दोगे बेटा? Yes, ma'am. Thank you. To those who are continually devoted to serving me and with love, I give the understanding by which they can come to me. हाँ हरी बोल, थैंक यू सो मच निशिका माता जी। आयुष्मान प्रभु जी आप एक बार हिंदी में दोबारा पढ़ दोगे? यस मैम। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वह मुझ तक आ सकते हैं। हाँ, सो इसमें भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं? डज एनीबॉडी वांट्स टू टेल? कन्ना माता जी। To those who are constantly devoted to serving me with love, I give the understanding by which they can come to me.
हाँ, तो वो लोग माता जी कौन मैं से लोग? बताऊं? हाँ, यस यस भुवनेश प्रभु जी, हाँ जी बताओ बेटा। माता जी भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि अगर तुम मुझे लव के साथ सर्विस करोगे तो मैं तुम्हें वो रास्ता बताऊंगा जिससे तुम मेरे पास आ सकते हो। यस, हरी बोल। तो भगवान बोल रहे हैं कि अगर तुम मुझे प्रेम से मेरी सर्विस करोगे तो मैं तुम्हें वो समझ दूंगा, मैं तुम्हें वो रास्ता बताऊंगा जिसके द्वारा तुम मेरे पास आ सकोगे। So all we need to do is we need to do loving devotional service to the Lord, and बाकी सब भगवान खुद अरेंज करेंगे। He himself will arrange. In fact भगवान कहते हैं कि आप मन में सिर्फ एक डिजायर भी रखोगे ना, इच्छा भी रखोगे कि you know, hey Krishna, I have a desire that I should love you, I could love you and come back, तो वो डिजायर फुलफिल करने के लिए भगवान 99 कदम आगे बढ़ जाएंगे। यानी अगर हम एक कदम भी आगे बढ़ाएंगे तो 99 कदम भगवान आगे बढ़ाकर हमें हमें रास्ता दिखा देंगे। Isn't it amazing? है ना? Okay. So we'll move on to the next one. Then भगवान श्री कृष्ण, this is ये चतुर्श्लोकी का लास्ट श्लोक है जिसमें भगवान बताते हैं तेषामेव अनुकंपार्थम अहम ज्ञान जन जम तमः नाश्यामया आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वतः। तो यहाँ पर कृष्णा अर्जुन को बोल रहे हैं। Can I read? हाँ, go ahead बेटा। Yes. To show them special mercy, I dwelling thoughts destroy with the shining lamp of knowledge the darkness born on ignorance. हाँ, हाँ, yes प्रीति माता जी, go ahead read. मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। हाँ, yes, very nice. So anybody else wants to read? हाँ, yes, Arav Prabhu ji. हाँ, Arav Prabhu ji, you can read, and then after that I think Sukar Kriti Mataji and Sanskriti Mataji, then you can read. Go ahead beta. I, dwelling in their hearts, destroy with the shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance. हाँ, Hari Bol, Hari Bol. Thank you. Sukar Kriti Mataji, do you want to read? And Sanskriti Mataji. Yes, Mataji. हाँ, yes. मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञानजन्य अंधकार को दूर करता हूँ। हाँ, very nice. इसका बहुत ही डीप मीनिंग है. We'll discuss that. संस्कृति माता जी, do you want to read? हिंदी इंग्लिश में से आप कुछ पढ़ोगे बेटा? To show them special I dwelling in their heart, destroy with the shining lamp of knowledge the darkness born of ignorance. Yes, Hari Bol, Hari Bol. Prachi Mataji, would you want to read this meaning? And then I will explain. Prachi Mataji or Sanvi Mataji. Anyone if you want to read, you can unmute Mataji, we can give the opportunity to the ones who are writing in the chat box, like Prisha Mataji and Ananya Mataji. हाँ, sure. Prisha Mataji, let me unmute you. Where did you go? Prisha Mataji, आप कहाँ चले गए? अच्छा, in the meantime, Ananya Mataji, you read and I will look for Prisha Mataji. Yes. मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु हृदयों में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान्य अंधकार को दूर करता हूँ। Hari Bol, very nice. Okay, so I'm not able to see. Mataji, you can search in the list, participants yes, list. got it. Hare Krishna, Prisha Mataji, you can unmute yourself. Hare Krishna Mataji. Yes, go ahead, beta, read. To show them special mercy, I, dwelling in their hearts, destroy the shining lamp of knowledge, the darkness born of ignorance.
यस, तो भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो मैं जो जो डिवोटीज मेरे बारे में सोचते हैं मैं उनको रास्ता दिखाता हूँ, पर कैसे रास्ता दिखाता हूँ? टू शो देम माय स्पेशल मर्सी ड्वेलिंग इन देयर हार्ट आई डिस्ट्रॉय द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस, यानी कि उनके हृदय में वास कर कर मैं जितना भी इग्नोरेंस होता है, जितना भी अंधकार होता है, इग्नोरेंस ऑफ नॉलेज, उसको सबको डिस्ट्रॉय कर देता हूँ और उनको फिर रास्ता दिखाता हूँ। ठीक है, अब एक चीज, एक एंड व्हाई आई वांटेड ऑल ऑफ यू टू रीड दिस बिकॉज भगवान तो परमात्मा रूप में हर किसी के हृदय में है ना, तो भगवान सिर्फ उन्हीं को ये क्यों बोल रहे हैं कि उन्हीं को रास्ता दिखाता हूँ जो मेरी सेवा करते हैं? एक्चुअली भगवान सबको रास्ता दिखाते हैं, लेकिन जो भगवान के बारे में नहीं सोचते या भगवान के बारे में नहीं बताते, मतलब नहीं जानना चाहते, वो एक्चुअली भगवान की बात को इग्नोर कर देते हैं। यानी कि जो इंसान बुरे से बुरा काम भी करता है उसकी कॉन्शियसनेस भी उनको बोलती है कि नहीं गलत काम है ना। लेट्स से कोई मर्डरर है या कोई थीफ है, उसके अंदर से भी परमात्मा की आवाज आती है कि गलत काम है। कभी हम भी गलत काम कर रहे होते हैं ना, गुस्सा कर रहे होते हैं, लड़ाई कर रहे होते हैं, तो हमारे अंदर से भी आवाज आती है कि गलत है, नहीं करना चाहिए, पर हम क्या करते हैं? क्योंकि हम भगवान की तरफ नहीं देखकर अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो हम उस आवाज को नजरअंदाज कर देते हैं, वी इग्नोर इट। लेकिन जो डिवोटीज होते हैं, जो भगवान के बारे में सोचते हैं, उनको भगवान की जो अपने परमात्मा की आवाज है बहुत क्लियरली सुनाई देती है, वो क्लियरली भगवान के दिखाए हुए रास्ते पे आगे बढ़ सकते हैं। सो दैट इज द ओनली डिफरेंस, राइट? माता जी, आपने कभी ऐसा फील किया है कि मतलब जैसे आपके मन में कोई और ही कह रहा हो कि मतलब आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना। हाँ, यस 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 यस, और मैंने माता जी ऐसा भी, जब हाँ यस गो अहेड बेटा, हाँ यस। माता जी हमारी ख्याला में एक फैक्ट्री है, तो माता जी वहाँ पे नीचे वाली फैक्ट्री में आग लग गई थी। मतलब वो मंगलवार था, तो उन्होंने दिया जलाया था, तो उसी की वो तिल्ली से लग गई थी। तो माता जी सुबह सुबह मम्मी पापा उठे जल्दी जल्दी, मेरे को कह रहे हैं कि मतलब फैक्ट्री के नीचे आग लग गई है, हम लोग जा रहे हैं, तो घर का ध्यान रखना। तो मेरे नाना जी भी थे, मेरे नाना जी एकदम परेशान हो गए थे, मम्मी पापा परेशान हो गए थे। बट माता जी बस मतलब मन में ऐसा लग रहा था जैसे कोई कह रहा है कि मैं हूं ना, आप टेंशन मतलब माता जी ये भी नहीं था कि मतलब टेंशन मत लो ऊपर वाला, बस ये लग रहा था जैसे कोई कह रहा है कि मैं हूं ना। हाँ, दैट आई एम देयर टू टेक केयर ऑफ, कि मैं हूँ, मैं सब कुछ कर लूंगा। यस, और ऐसे भी बहुत बार होता है कि हम कुछ गलत कर रहे होते हैं, गुस्सा कर रहे होते हैं, और अंदर से आवाज होता है नहीं ये गलत, ऐसे नहीं करना चाहिए। एंड समटाइम्स इफ यू इग्नोर, मैं अपनी बात कर रही हूँ, हम इग्नोर करते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमने गलत करा भगवान की बात को इग्नोर कर कर। So here that is the reason why Krishna is saying जो मेरी प्रेममय भक्ति करता है, whoever does my devotion, उसको मैं खुद रास्ता दिखाता हूँ, and dwelling in his heart I destroy the darkness of ignorance, right? So isn't it very nice, very beautiful? So आज की हमारी स्टोरी भी बहुत ब्यूटीफुल है। इट इज स्टोरी ऑफ सनातन गोस्वामी एंड टचस्टोन यानी पारसमणि के बारे में। सो हरे कृष्णा माता जी। माता जी मैंने स्टोरी पढ़ी है इसकी बुक में। हाँ यस, हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा ऑल ऑफ यू। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। आज की स्टोरी ध्यान से सुनना। हाँ यस, आज की स्टोरी ध्यान से सुनना, क्योंकि वी डोंट हैव टू मेनी पिक्चर्स। जो भी माता जी स्टोरी सुनाएंगे ना, आपको इमेजिन करना पड़ेगा। सो इमेजिन और बहुत ध्यान से सुनना। इट्स वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। यस माता जी, लेट्स स्टार्ट। थैंक यू माता जी। So this is a story about a man who lived in a little village of India, and his name was Gopi. And ये जो गोपी था, he was a great devotee of Lord Shiva. किनका डिवोटी था? लॉर्ड शिवा का। एंड वो उसका सिर्फ एक ही काम था, he would spend the entire day worshipping लॉर्ड शिवा। तो वो क्या सारा दिन सुबह शाम बस वो भगवान शिव की पूजा करता रहता था। तो जो उसकी वाइफ थी ना, उसकी वाइफ का नेम वाज लक्ष्मी, वो एक बार बहुत गुस्से हो गई, क्योंकि वो कोई काम पे नहीं जाता था, और जब वो काम पे नहीं जाता था, वो थोड़ा सा जैसे वो पुअर फेलो था, तो जब वो हरे कृष्णा। यस माता जी। हाँ जी सॉरी माता जी बीच में। हाँ, नहीं, तो वो काम, हाँ जी वो काम पे जाते थे,
वो काम पे नहीं जाता था, तो उसके घर में इतना कुछ खाने को नहीं, थोड़ा पुअर सा था। तो उसकी वाइफ लक्ष्मी थी, वो बहुत ज्यादा गुस्से हो गई। उसको क्या करती थी, जैसे वो लोग को देखती थी, नेबर्स को देखती थी, तो वो यही सोचती थी कि मतलब शी यूज्ड टू विश कि शी शुड हैव दिस मच ऑफ इनफ मनी, ताकि वो बहुत अच्छे से एक बेटर लाइफ कर सके, एंजॉय कर सके, उसके पास गुड फूड होना चाहिए, गुड क्लोथ्स होने चाहिए। तो वो बहुत ज्यादा गुस्से हुई, and she shouted at Gopi, and उसने कहा you are good for nothing, तुम किसी चीज के लिए ठीक नहीं हो, अच्छे नहीं हो। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि तुम घर छोड़ के चले जाओ एंड तभी आना जब आप कुछ पैसे कमा कर आएगी। अब इस बात को सुनकर गोपी तो बहुत परेशान हो गया, बहुत हो गया। अब उसने क्या किया, अब वो घर से निकल तो गया काम के सर्च के लिए, पर उसने कभी भी काम नहीं किया हुआ था, he had never worked, तो उसको कोई काम समझ ही नहीं आ रहा था, उसको पता ही नहीं था काम कैसे करना है। तो वो थक हार के एक ट्री के नीचे बैठ गया, एक पेड़ के नीचे बैठा, तो फिर वो भगवान शिव को याद करने लगा। उसने कहा भगवान प्लीज मेरी हेल्प करो। एंड आपको पता है जब भगवान की पूजा करो, शिव जी का एक और नाम है, शिव जी का नाम है आशुतोष। तो आशुतोष का मतलब होता है कि जिसको हम बहुत अच्छे से प्लीज कर सकते हैं, बहुत इजीली प्लीज कर सकते हैं। तो जब उन्होंने गोपी को ऐसे देखा एंड उन्होंने देखा कि गोपी परेशान है, मेरी पूजा भी कर रहा था, उनको प्रे भी कर रहा था, तो वो गोपी के पास आए, लॉर्ड शिवा अपीयर्ड बिफोर हिम। तो उन्होंने गोपी को कहा, गोपी ने उनको कहा कि हे भगवान शिव, आप प्लीज मेरी हेल्प करें, आप मेरी ऐसी हेल्प करें कि भाई आप मुझे कुछ ऐसा इतना वैल्यूबल चीज दें कि जिससे मेरी वाइफ सेटिस्फाइड हो जाए, ताकि वो खुश हो जाए। तो लॉर्ड शिवा उनको कहते हैं कि आप वृंदावन जाओ, एंड जब आप वृंदावन जाओगे दे यू विल मीट अ सेंट, एक ऋषि को मिलोगे, एक सेंट को मिलोगे जिनका नाम है सनातन गोस्वामी। और फिर वो आपको जो आप जो ये इतनी वैल्यूएबल और जो ग्रेटेस्ट वैल्यू की चीज मांग रहे हो ना, वो आपको वो देंगे। तो गोपी बहुत ही एक्साइटेड होता है, गोपी बहुत एक्साइटेड होता है, वो जितनी जल्दी हो सके ना वृंदावन भागता है। जब वो वृंदावन जाता है, वो रास्ते में यही सोचता जाता है, वाह अब मुझे इतना काम भी नहीं करना पड़ेगा, इतना काम मैं सिर्फ भगवान को याद करूंगा, अब मैं जाऊंगा वो मुझे कुछ इतनी वैल्यूबल सी चीज देंगे मैं, जिससे मेरी वाइफ भी खुश होगी और मेरी लाइफ को भी खुशी होगी, और मैं पर उसका एक मोटिव है कि मैं भगवान को वो कर सकूंगा अपनी वाइफ को सेटिस्फाई करके। वो चाहते हैं वृंदावन। जब वो वृंदावन पहुंचते हैं, तो वो सनातन गोस्वामी के आश्रम में जाते हैं, उनको अपनी रिस्पेक्ट, अपने भाई दंडवत करके उनको अपनी ऑफर करते हैं अपनी रिस्पेक्ट। उसके बाद वो कहते हैं, गोपी कहते हैं कि मुझे भगवान शिव ने, लॉर्ड शिवा ने मुझे इंस्ट्रक्ट किया है कि आप मुझे कुछ ऐसी चीज, मतलब बहुत ही वैल्यूएबल चीज देंगे। तो सनातन गोस्वामी उन्हें कहते हैं ठीक है, आप इस जो आश्रम है इस हट के पीछे जाइए, और वहां पर ना एक बहुत हीप ऑफ गार्बेज, बहुत ही गार्बेज होगा, और उसके सबसे नीचे आपको एक ऐसी वैल्यूएबल सी चीज मिलेगी। अब गोपी इमीडिएटली भागता है, वो जब पीछे जाता है तो पूरा हीप ऑफ गार्बेज होता है, उसके नीचे उसको क्या मिलता है, एक स्टोन मिलता है। क्या मिलता है, ही फाउंड अ स्टोन। अब वो ऐसे सोचने लग जाता है कि ये कैसे कितना वैल्यूबल होता है, हो सकता है ये, मतलब ये तो एक सिर्फ एक पत्थर लग रहा है, ये इतना वैल्यूबल कैसे हो सकता है। तो वो फिर वापस सनातन गोस्वामी के आश्रम में जाकर उनसे पूछते हैं कि मतलब हाउ इज दिस स्टोन सो मतलब वैल्यूबल। तो उनको स्वामी स्पॉन्सर मतलब और बताते हैं कि ये जो गोपी, ये जो स्टोन है ना, ये कोई ऑर्डिनरी स्टोन नहीं है, इसके अंदर इट हैज अ वेरी ग्रेट पावर। तो यू टच इट टू एनी ऑब्जेक्ट एंड दैट ऑब्जेक्ट विल टर्न टू गोल्ड। क्या कहते हैं, अगर आप इस स्टोन को किसी भी ऑब्जेक्ट से टच करोगे तो वो क्या बन जाएगा, सोना। वो क्या बन जाएगा, सोना। तो गोपी बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। अब वो कहते हैं भाई, जैसे वो बहुत ही खुश होते हैं, वो कहते हैं अब मैं घर जाऊंगा, ये जो इतनी वैल्यूएबल इतना ट्रेजर जो उनको मिला है, ये शो दिस टू हिज वाइफ। और जब वो ऐसे देखेगी तो बहुत खुश होगी कि भाई आप क्या चीज लेकर आए हो। अब वो घर पहुंचता है, तो अब वो घर पहुंचता है, जब वो ये सब बात अपनी वाइफ को लक्ष्मी को बताते हैं, तो लक्ष्मी भी बहुत खुश होती है।
वो जिस चीज से उस स्टोन को टच करते हैं, वो स्टोन जहाँ जहाँ टच करते हैं तो वो सारी चीजें गोल्ड होते हैं। वो अपने घर के जितने हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं सब पे टच करते रहते हैं, वो गोल्ड में कन्वर्ट होते रहते हैं। अब अल्टीमेटली क्या होता है कि धीरे धीरे जब ये ऐसे करते हैं तो अब वो जो उनकी पोजीशन होती है, जैसे वो पुअर होते हैं, उनके पास गुड क्लोथ कुछ नहीं होता, अब वो बहुत रिच हो जाते हैं। तो अब ऐसे करके ना थोड़े दिन बाद लक्ष्मी को ना फिर से डाउट होता है। अब लक्ष्मी को क्या डाउट होता है, लक्ष्मी सोचती है कि अगर ये चीज इतनी वैल्यूबल है तो इसको कूड़े के उसने क्यों रखा था? इसका मतलब है इससे भी ज्यादा कोई चीज वैल्यूबल होगी, क्योंकि कोई अपनी इतनी वैल्यूबल चीज कूड़े में तो नहीं रखा है। तो इसका मतलब है कि इससे भी ज्यादा एक वैल्यूबल चीज होगी। इसका मतलब है कि वो उसको ऐसे लगा कि अगर सन्यासी के पास इससे भी अमेजिंग स्टोन होगा जो उसके पास खुद होगा, वो ऐसे रबिश ऐसे गॉर्बेज में नहीं डालेगा। एंड तो उन्होंने कहा कि आप, और उन्होंने बताया, जब लक्ष्मी ने कहा तो उसने कहा कि आपको तो लॉर्ड शिवा ने कहा था ना कि बहुत ही सबसे वैल्यूबल चीज लेकर आना, और आप ये ले आए हो, तो अब आप जाओ वापस और उनको बोलो कि गिव मी द मोस्ट वैल्यूबल थिंग, है ना। तो अब वो सनातन और वो जो गोपी होता है उसको बात समझ नहीं आती है, मतलब उसको ये नहीं समझ आता कि उसकी वाइफ क्यों नहीं सेटिस्फाइड होती है। हाँ, तो उसको लगता है कि इतना हमें न्यू वेल्थ ऐसे ट्रेजर मिला, इतनी हमारी चीजें ऐसी, तब भी मेरी वाइफ सेटिस्फाइड नहीं है। अब वो मुझसे फिर से कह रही है कि मैं वापस उधर वृंदावन जाऊँ, आश्रम में जाऊँ और उसको स्वामी से दोबारा से जो उनकी सबसे वैल्यूबल चीज है वो लेकर आऊँ। तो अब वो क्या करते हैं, अब वो वापस वृंदावन जाते हैं कि किस चीज के लिए, कि उससे भी ज्यादा वैल्यूबल थिंग को उसको लेने के लिए। अब जब वो वृंदावन पहुंचते हैं, सनातन गोस्वामी के आश्रम में पहुंचते हैं, तो वो अपनी जो वाइफ लक्ष्मी के जो सारे डाउट्स होते हैं ना, वो सनातन गोस्वामी को कहते हैं। अब सनातन गोस्वामी कहते हैं कि योर वाइफ इज एब्सोल्युटली राइट, पर ये जो स्टोन है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हाँ जी, वो कहते हैं कि ये जो स्टोन है, ये आप मतलब वो बोलते हैं कि आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, ये स्टोन आपको रिचेस तो ला सकता, ये स्टोन रिचेस दे सकता है, पर ये मेरे लिए कोई वैल्यू का नहीं है। ठीक है, ये कौन बोल रहे हैं? सनातन गोस्वामी बोल रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी Mataji, your voice is not coming. Hare Krishna Mataji. माताजी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा, आई थिंक वो कनेक्टिविटी इशू इस वजह से नहीं आ रही। आई थिंक माताजी वो लेफ्ट कर गए गलती से। हाँ, नहीं माताजी दिख तो रहे हैं पर आवाज नहीं आ रही उनकी। ओके, सो मैं इसके आगे मैं बताती हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ, तो सनातन गोस्वामी कहते हैं हाँ तुम ठीक कह रहे हो, ये जो पत्थर है मेरे लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तभी तो मैंने इसको कूड़े में रखा हुआ था। तो अब वो गोपी है, वो सोचने लगता है, गोपी सोचता है कि अच्छा क्या मेरी वाइफ सही बोल रही थी, इस पत्थर की सच में कोई वैल्यू नहीं है। तो वो बोलता है अच्छा मैं अगर वापस पत्थर लेकर चले जाऊंगा तो वो फिर परेशान करेगी, बोलेगी तुम सबसे महंगी चीज लेकर नहीं आए, तुम तो फिर ये पत्थर लेकर आ गए। तो वो बोलते हैं अच्छा गोस्वामी जी मैं जानना चाहता हूँ कि इससे भी वैल्यूएबल चीज क्या है, ऐसी कौन सी चीज है जो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, इस पारस मनी से ज्यादा भी वैल्यूएबल चीज कौन सी है। तो वो बोलते हैं ठीक है मैं तुम्हें जरूर बताता हूँ, पर तुम्हें सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, तुम्हें ये जो पत्थर है इसको जाकर तुम यमुना जी में फेंक कर आ जाओ। वो थोड़ी देर सोचते हैं, गार्बेज में कहते हैं ना, वापस उस गार्बेज में गार्बेज में फेंक दो या यमुना जी में फेंक दो, कहीं भी जाकर उसको फेंक कर आ जाओ। तो जो गोपी होता है वो कहता है कि हाँ ठीक है। पहले तो वो सोचता है थोड़ी देर, वो कहता है अच्छा फेंकू नहीं फेंकू, फेंकू नहीं फेंकू, फिर सोचते चलो अब मुझे स्वामी जी बोल रहे हैं, गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि इससे भी कुछ ज्यादा वैल्यूएबल चीज है तो मैं इसको फेंक कर आ जाता हूँ। तो वो जाकर उसको गार्बेज में फेंक कर आ जाते हैं। फिर वो सनातन गोस्वामी उनको बोलते हैं अब आप क्या करो, अब मैं आपको सबसे दुनिया की सबसे वैल्यूएबल चीज बताता हूँ जो आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट देगी। तो वो बोलते हैं अब अपने दोनों हाथ ऊपर करो, आप लोग भी तो अपने दोनों हाथ ऊपर कर सकते हो,
ऑल ऑफ यू, एंड यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। और बोलते हैं, अब आप बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सनातन गोस्वामी इनको बताते हैं कि दुनिया की सबसे वैल्यूएबल चीज इज द चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड, क्योंकि इसी के माध्यम से हम भगवान को हमेशा याद रख सकते हैं। और क्योंकि हम भगवान को याद रखेंगे, तो अभी जैसे हमने भगवान ने हमें स्वयं बताया कि मेरे भक्त, जो जो भक्त मेरे बारे में सोचते हैं, जो मेरे मेरे लिए कार्य करते हैं, मेरे को वर्शिप करते हैं, वो क्या है, वो मेरे पास वापस आते हैं। आई शो देम द वे टू कम बैक टू गॉड हेड। ठीक है, क्योंकि इस मटेरियल वर्ल्ड में बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना इज द बेस्ट सोल्यूशन, है ना। हम एक लाइफ में वी कैन बिकम द मोस्ट रिच पर्सन लाइक एन ऐश्वर्या राय और अमिताभ बच्चन, पर नेक्स्ट लाइफ में हो सकता है फिर हम दोबारा से गरीब बन जाए, दोबारा से कुछ और प्रॉब्लम आ जाए। एंड इवन द ऐश्वर्या राय एंड अमिताभ बच्चन आर नॉट फ्री ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट। they are not at all free of problems, right? So हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है until we go back to the godhead। इसलिए कहते हैं 4 तरह के प्रॉब्लम्स हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो जब भगवान का नाम लेते हैं हम बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये निश्चित है कि हम इस जन्म मृत्यु की साइकिल से, ये 4 प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे, निश्चित, इट इज गारंटीड। गॉड गारंटीज कि आप बाहर निकल जाओगे, राइट। सो सनातन गोस्वामी उनको सबसे वैल्यूएबल चीज बताते हैं, एंड दैट इज द हरे कृष्णा महामंत्र। ओके, सो इस चैप्टर में क्योंकि इस चैप्टर का नाम है हाँ यस तो इस चैप्टर का नाम है द ऑपुलेंस ऑफ द सुप्रीम। तो भगवान बताते हैं कि जो मैं हूं, मैं सारे सन्स में से आई एम द लाइट, सारे स्टार्स में से आई एम द मून, सारे माउंटेन में से मैं मेरू पर्वत हूँ, और जो अचल चीज है जो हिलती नहीं है उसमें से मैं हिमालय हूँ। ऐसे बोलते हैं ना, हिमालय की तरह दृढ़ बनो। आपने कभी सुना है हिमालय की तरह दृढ़ बनो, यू नो। फिर भगवान बोलते हैं कि सारे पानी के जलाशयों में से मैं समुद्र हूँ, तभी तो हम उनको बोलते हैं करुणा सिंधु, यानी जो सिंधु ओशन, ओशन की तरह उनमें करुणा है। और भगवान बोलते हैं सारे पेड़ों में से मैं बैंयन ट्री हूँ, बरगद का पेड़ हूँ, सारी नदियों में मैं गंगा हूँ, सारे महीनों में मैं माघ का महीना हूँ जिस मौसम में बारिश होती है, सारे सीजन्स में मैं स्प्रिंग सीजन हूँ। स्प्रिंग सीजन सर्दियों के एकदम बाद आता है ना, तभी फरवरी में बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स खिलते हैं। फरवरी जब सर्दियां जा रही होती हैं और गर्मियां आ रही होती हैं, उसके बीच का जो सीजन होता है ना, उसमें बहुत अच्छा मौसम होता है और बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स खिल रहे होते हैं। उस समय बीमारी भी बहुत ज्यादा होती है। हाँ, क्योंकि मौसम बदलता रहता है ना। हाँ यस, मार्च में भी। और भगवान बोलते हैं ऑफ ऑल द वाइब्रेशन, ऑल साउंड वाइब्रेशन, आई एम ओम। सो ओम की साउंड, ही सेज मैं ओम हूँ। ऑफ ऑल द सैक्रिफाइस, जितने भी सैक्रिफाइस, जितने भी यज्ञ है, आई एम द चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स, राइट। अभी सनातन गोस्वामी ने बताया ना, क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। भगवान बताते हैं कि सारे वेदों में से मैं साम वेद हूँ। तो ये सब चीजें भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन को बताई हैं। ही इज एक्चुअली सेइंग ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। सो आज की हमारी एक बहुत छोटी सी क्विक एक्टिविटी है। सो इन दिस एक्टिविटी व्हाट विल डू इज विल लिसन टू सम थिंग्स। हम एक कुछ चीजें के बारे में सुनेंगे और इन चीजों के बारे में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एट द एंड, ठीक है। सो इट इज अ स्मॉल पोएम ऑन कृष्णा। Krishna is the creator, the sun, the moon, the stars and the sky. So Krishna created the sun, the moon, the stars and the sky. ध्यान से सुनना, ठीक है। He created the fish that swims. He created the birds that fly. The sand of the beach, the mountains tall. Who made them, dear? Who made them all? किसने बनाया सबको? कृष्णा हाँ, कृष्णा ने बताया, भगवान ने बनाया। भगवान कौन है? भगवान कृष्ण है, क्योंकि he has all the 6 opulences. Okay, Krishna is the creator of big and small, the creepers, the bushes, the plant and the trees, the beautiful flowers and the humming bees, the animals that walk, the insects that crawl. Who made them all?
Krishna made them Krishna. all. Yes, Krishna is the creator of big and small, pleasing to the heart, attracting all. Krishna is the creator of big and small. He holds together everything as pearls are held upon a string. जैसे एक मोतियों की माला होती है, वो जो धागा हुआ है वो सारे मोतियों की माला को इकट्ठे बांध कर रखता है ना? तो कृष्णा वो बिल्कुल उस धागे की तरह है जो सारे मोतियों के मालों को यानी कि सब क्रिएशन को इकट्ठे बांध कर रखते हैं. ठीक है. सो नाउ क्विक एक्टिविटीज टुडे जो अभी हमने सुना भगवान कृष्ण क्या क्या क्रिएट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं. लेट्स सी हाउ मेनी आर यू एबल टू रिमेंबर. सो क्या क्या था, डू यू रिमेंबर? माता जी कृष्णा ने ही हिमालय बनाया है, सूरज बनाया है, मून बनाया है, उन्होंने सारे बर्ड्स, एनिमल, इंसेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट, फिश, सैंड एंड माता जी ऊंचे से ऊंचा माउंटेन भी उन्होंने ही बनाया. Yes, और माता जी जो इंसेक्ट्स जो क्रॉल कर सकते हैं और एनिमल्स जो वॉक कर सकते हैं. और वो एक पर्ल्स ऑफ स्ट्रिंग है जो कि वो सारी क्रिएशंस को इकट्ठे रखते हैं. हाँ, वो एक धागे की तरह है जो सबको बांध कर रखते हैं. यस, और उन्होंने बनाया सारे प्लांट्स को, क्रीपर्स को, मतलब क्रीपर्स यानी लताएं होती है ना, किसी के सपोर्ट लेकर खड़ी, सारी लताएं, सारी बुशेस और सारे ट्रीज, फ्लावर्स. यस, और कभी आप बाहर जाओ, कभी जैसे वेकेशन पर अगर आप जाते हो किसी हिल स्टेशन में, तो जब आप आसपास सब कुछ देखते हो तो आपको लगता नहीं है कि सब कुछ कितना सुंदर है ना. कृष्णा ने सब कुछ इतना सुंदर बनाया है. इवन अ स्मॉल टाइनी फ्लावर, कभी इसको आप ध्यान से देखोगे ना तो आप बोलोगे हाउ ब्यूटीफुल इट इज. अब छोटी सी वो चिड़िया होती है ना, एक तो डू यू रिमेंबर, अब तो बहुत कम हो गई, छोटी सी चिड़िया देखिए किसी ने, छोटी ब्राउन कलर की है ना. हाँ, वेरी नाइस. कभी आप उस चिड़िया को भी देखोगे? हाँ, आपके घर पे बनाया? अरे बहुत तरीके की आती हैं माता जी, हमने तो उनमें से कईयों के नाम ही नहीं पता. माता जी स्क्वायरल, माता जी कैट और बहुत सारी जानवर आते हैं क्योंकि माता जी हमारी छत पे पूरे पौधे लगे हुए हैं. यस, दैट्स राइट. हाँ, सो कभी आप इनको देखोगे ना तो आप कहोगे कि भगवान ने कितने प्यार से इनको बनाया. दे आर ऑल सो ब्यूटीफुल. कभी फ्लावर्स को देखो, यू लुक एट द लीव्स, ट्रीज को देखो, एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल. सो एवरीथिंग दैट कृष्णा इज मेड, क्रिएटेड, हर कुछ हम अपनी नजर कहीं पर वहीं घुमा ले. हम इनफैक्ट अगर आप मेरे पीछे वाली पिक्चर को भी देखोगे तो यू विल सी माउंटेन्स है, क्लाउड्स है, ट्रीज है, ग्रीनरी है, ग्रास है, सब कुछ कितना सुंदर है ना. You know, we get attracted. So Krishna has created everything, and Krishna has it's, you know, whatever Krishna has created is very beautiful, right? So आज का हमारा होमवर्क भी इसी से रिलेटेड है. सो अनन्या माता जी, आज हमें क्या करना है, हमें एक सीनरी बनाना है. हम स्कूल में बनाते हैं ना सीनरी, माय फेवरेट सीनरी. एक माउंटेन्स है, माउंटेन में से झरना बह रहा है और वहां बहुत सारे फ्लावर्स है, बटरफ्लाईज है. कृष्णा बनाने हैं. हाँ, लेकिन हमारी सीनरी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होंगे कृष्णा. हाँ, आप राधा कृष्णा भी बना सकते हैं, आप सिर्फ कृष्णा भी बना सकते हो. आपके पास अगर छोटी सी कृष्णा की पिक्चर है तो उसको कट करके उसमें लगा पेस्ट भी कर सकते हो. सो आज का हमारा वो है कि हमें सीनरी बनाना है, और ये ध्यान रखते हुए सीनरी बनाना है कि जो भी कुछ है सीनरी में, कृष्णा इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग. जैसे सुंदर से क्लाउड्स, सुंदर सा सुंदर से माउंटेन, सुंदर सी ग्रास, फ्लावर्स, and of course Krishna, because he is the creator, so he has to be present in the scene. माता जी. हाँ जी बेटा. yes माता जी, हम हाँ बिल्कुल बना सकते. यस डेफिनेटली वाटरफॉल बना सकते हैं. यार हिम्मत ना हो ना, पंगे मत लिया कर, ठीक है? रोना ही आता प्रेषा माता जी, दोबारा बोलो. प्रेषा माता जी, दोबारा बोलो. हाँ, प्रेयर बुक में बनाने. यस, थैंक यू सो मच प्रेषा माता जी. प्रेयर बुक में बनाने ताकि आपकी सारी चीजें एक ही जगह हो. ठीक है, थैंक यू प्रेषा माता जी. मैं बिल्कुल भूल गई थी बताने के लिए कि प्रेयर बुक में बनाने. ठीक है माता जी, मेरा भी क्वेश्चन यही था. हाँ, अच्छा, हरी बोल. माता जी, बट मेरी प्रेयर बुक जो है माता जी, स्क्रैप बुक और प्रेयर बुक सेम ही है. हाँ, तो आप स्क्रैप बुक में बना लो.
बना लो उसके माता अंदर। जी बट उसमें लाइंस पे- वाली है तो माता जी मैंने एक अलग से ड्राइंग फाइल में मेंटेन कर रखी है हाँ उसमें उसमें बना लो। यस 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 डेफिनेटली यस। माता जी माय स्क्रैप बुक। अरे वाह वेरी ब्यूटीफुल। हरी बोल हरी हरी बोल वेरी नाइस। लेट मी तो जी इनको स्पॉटलाइट कर दो, दिख नहीं रहा है। हाँ यस यस हरी बोल वेरी ब्यूटीफुल। येलो कलर कृष्णा's फेवरेट कलर। हरी 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 बोल वेरी नाइस शीतल माता जी बहुत सुंदर है। हरी बोल। सो इसमें आप बना सकते हो ड्राइंग बुक में बना सकते हो बट रिमेम्बर टू कीप कृष्णा इन द सेंटर। ठीक है माता जी ओके Ma'am, we not माता able जी to make the Krishna. Can we write a name? हाँ आप कृष्णा का नाम लिख सकते हो और अगर आपके घर में कोई मैगजीन है कृष्णा की छोटी सी पिक्चर है तो वो कट करके भी आप लगा सकते हो। यस भुवनेश प्रभु जी आप कुछ कह रहे थे बेटा। माता जी सीनरी बना के उस पे स्टिकर लगा सकते हैं। हाँ स्टिकर लगा सकते हैं। यस बिल्कुल आप स्टिकर्स लगा सकते हो जैसे छोटे छोटे बटरफ्लाइज के स्टिकर्स भी आते हैं स्टार्स भी आते हैं वो भी लगा सकते हो। इट इज योर सीनरी आप उसको अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हो। यू कैन डू माता जी हम एनीथिंग। फोन की हम स्टिकर लगा इमेजिन सकते हैं। कर सकते हैं कि हम गोलोक की सीनरी बना रहे हैं, हाँ गोल्डन लोटस हो गए और बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं। यस डेफिनेटली डेफिनेटली। एक सेकंड प्रश्न आती थी भुवनेश प्रभु जी आप एक बार दोबारा बोलना क्या कह रहे थे आप फोन पर क्या। माता जी फोन पे जो स्टिकर्स लगा सकते हैं वो वाले। हाँ वो लगा सकते हैं डेफिनेटली लगा सकते हैं। यस यस ओके माता जी। माता जी मेरी प्रेयर बुक अभी कंप्लीट नहीं हुई जब कंप्लीट हो जाएगी तब भेज सकते हैं। हाँ यस डेफिनेटली बेटा आप बता भेज सकते हो। यस यस से दैट अगेन प्रश्न माता जी आप क्या करो बेटा। माता जी मेरी ना प्रेयर बुक जो है ना वो इतनी ही है छोटी, तो इसमें सीनरी फिट हो जाएगा क्या? हाँ आप उसको पेज को टिल्ट करके बना लो। ऐसे ना? हाँ यस यस माता जी मेरी वाले के तो पेज ही इतने छोटे से है। हाँ तब ड्राइंग रूम में बना लो। एक्चुअली प्रेयर बुक में रहेगा ना तो फिर वो एक जगह इंटैक्ट अगर खाली पेपर में बनाएंगे ना तो पेपर इधर उधर को गुम हो जाएगा। बुक के अंदर रहेगा ना तो एटलीस्ट वो इधर उधर गुम नहीं होगा फटेगा माता जी नहीं मैं इसकी इसलिए। तरफ पेस्ट कर दूंगी। हाँ यस यस ठीक है इसमें ठीक है। सो आज का हमारा श्लोका भी रह गया। सो लेट्स क्विकली लेट्स क्विकली रिवाइज दैट श्लोका। अगर आप पॉसिबल है ना आप 10.8 10.9 10.10 एंड 10.11 ये चारों लर्न कर लेना क्योंकि इन चारों को बोलते हैं चतुर्श्लोकी भगवत गीता। तो ये हरे कृष्णा माता जी सॉरी टू डिस्टर्ब बट एक्चुअली आई गॉट डिस्कनेक्टेड, तो आप बता सकते हो मतलब अभी हम क्या कर रहे थे वो प्रेयर बुक के डिस्कशन करके हाँ बाद। यस 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 माने बात है। हम बस ये डिस्कस कर रहे थे कि जो सीनरी है वो प्रेयर बुक में बनाएंगे ना तो वो कहीं पे गुम नहीं होगी। अगर हम खाली पेपर में बनाएंगे तो फटने के चांसेस रहते हैं इधर उधर गिरने के चांसेस रहते हैं। ठीक है एंड आई वाज सेइंग कि भगवत गीता के अगर आप चारों श्लोक लर्न कर सकते हो 10.8 10.9 10.10 10.11 सो इट विल बी वंडरफुल। नहीं तो आप हम 10.10 रिवाइज करेंगे लर्न करेंगे। ठीक है सो थैंक यू माता जी। थैंक यू। सो ऑल ऑफ यू कैन रिपीट आफ्टर मी। तेषाम तेषां ततत युक्तानां युक्तानां तेषां ततत युक्तानां तेषां सततयुक्तानां तेषां ततत युक्तानां तेषां सततयुक्तानां सततयुक्तानां okay we'll do the second line bhajatam भजतां प्रीति प्रीति पूर्वकम पूर्वकं भजतां प्रीति पूर्वकम भजतां प्रीतिपूर्वकम् भजतां प्रीति पूर्वकम भजतां प्रीतिपूर्वकं तेषां सतत युक्तानां तेषां सततयुक्तानां सततयुक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम भजतां प्रीतिपूर्वकं Harry bol. Now we'll do the third line. Dadami ददामि buddhi बुद्धि yogam tam योगं योगं dadami buddhi yogam tam ददामि ददामि योगं बुद्धिं dadami buddhi yogam tam ददामि ददामि बुद्धियोगं बुद्धियोगं Very nice. Now we'll do the last line. Yena येन mam मां upayanti te
उपयान्ति ते येन माम् उपयान्ति ते येन माम् उपयान्ति ते येन माम् उपयान्ति ते येन माम् उपयान्ति ते। यस सो एक बार पूरा श्लोक करेंगे। तेषां सतता युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। एक बार और करते हैं and then individually you can recite, okay? तेषां सतता युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। Hari Hari bol. So maybe we can individually recite. Who wants to recite first? Mataji, may I? Okay. Okay. So first, Pani Mataji, then you can recite. Then Aditi Mataji, you can recite, and then I think Sheetal Mataji can. Vani Mataji, go ahead. तेषां सतता युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। Mataji, last word है उपयान्ति ते। उपयान मैम थोड़ा बोला नहीं जा रहा है। हाँ, उपयान्ति ते। Perfect. Yes. उपयान्ति ते। Hari bol. Hari bol. Perfect. Hari bol. Mataji. Hari bol. Vani Mataji. Thank you. So Sheetal Mataji, you want to recite the stroke next? Mataji. Yeah. Thank you. तेषा सतता युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। Hari bol. Hari bol. Sheetal Mataji, very nicely recited. Hari bol. Aditi Mataji, you want to recite next? Yes, Mataji. तेषां सतता युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। Hari bol. Aditi Mataji, very nicely recited. Sheetal Mataji, you want to recite next? Oh, sorry, Vrinda Mataji, do you want to recite next? Yes, Mataji. तेषां सतता युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। Hari bol, Vrinda Mataji, very nicely recited. Big Hari bol for you. Prisha Mataji, do you want to recite next? Yes, Mataji. हाँ, sure. तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। Hari bol, Hari bol, Prisha Mataji, very nicely recited. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Parth Prabhuji, do you want to recite next? Yes, Mataji. तेषा सतता युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। Hari bol, Hari bol, Parth Prabhuji, very nicely recited. बहुत अच्छे से recite करा आपने. Thank you. Kanam Mataji, do you want to recite next, beta? तेषां सतता युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन उपयान्ति ते. Yes, very nice. Hari. उपयान्ति ते. Yes, very nice, Kanam Mataji, very nicely recited. So कोशिश करना 10.8, 10.9, 10.10 and 10.11 चारों याद कर लेना if possible. ठीक है, मैं recording भेजूंगी चारों की. ठीक है? Okay. Bhuvnesh Prabhuji, do you want to recite next, beta? Yes, Mataji.
तसां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। हरि बोल, हरि 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 बोल भुवनेश प्रभु जी, very nicely recited, perfect Thank you, recitation. Mataji. Thank you. Riti Mataji, do you want to recite next? Yes. भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। हरि 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 बोल प्रीति माता जी, बहुत अच्छे से रिसाइट करा आपने, वेरी स्वीटली। हरि बोल, जस्ट लाइक यू आर स्वीट। ओके, निशिका माता जी, डू यू वांट टू रिसाइट नेक्स्ट? निशिका माता जी, आप रिसाइट करोगे? हाँ, आप मेरे साथ करोगे? यस। ओके। तेषां ततता चेतां चक्तां युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम् उपयान्ति ते। अरे 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 बोल निशिका माता जी, वेरी नाइसली रिसाइटेड। इस श्लोक में मेरा नाम भी आता है, प्रीति। यस माता जी। यस मैम। है ना? यस, ओके। वाणी माता जी, you wanted to say something, बेटा? You want to? Mataji, can I recite again because of हाँ the हाँ, last mistake? yes yes yes, definitely you can. Yes yes. तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयन्ति ते। हरी बोल, हरी 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 बोल वाणी माता जी, वेरी नाइसली रिसाइटेड, परफेक्ट। आप सब लोग कोशिश करना कि 10.8, 9, 10, 11 सारे याद कर लो। सुकृति माता जी, वांट टू रिसाइट? आप ट्राई करोगे बेटा? जानिया माता जी, सानवी माता जी, डू यू वांट टू गिव इट अ ट्राई? गर्व प्रभु जी, हाँ यस, गो अहेड गो अहेड। ये सानवी माता जी, गो अहेड बेटा प्लीज। तेषां सततयुक्तानां भजतां पूर्वकं ददामि बुद्धियोगं येन माम् उपयान्ति ते। Yes, perfect, perfect. हरी हरी बोल, very nicely, you know, very nicely recited. आपके words clear है सानवी माता जी, आप बहुत अच्छे से recite करते हो। Do you want to recite with me once? एक बार मेरे साथ recite करना चाहोगे? तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। हरी बोल, हरी 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 बोल सानवी माता जी, वेरी नाइस। जब हम श्लोक लर्न करते हैं ना, द ट्रिक इज कि उसको गा कर लर्न करो। सो व्हेन यू लर्न द श्लोक इन सिंगिंग फॉर्मेट ना, तो बहुत अच्छे से याद रहता है और बहुत लंबे समय तक याद रहता है। ठीक है, सो दैट्स अ ट्रिक। माता जी क्या नाम है? Yes, Sukarkriti Mataji, please. Yes, and then Janya Mataji. Yes, try Sukarkriti Mataji. Yes. तेषां सततयुक्तानां भजन्तं प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। Hari Hari bol Sukarkriti Mataji. Very very nicely recited. Big Hari bol for you. Hari bol. Thank you, Mata. Thank you. Janya Mataji, you want to recite? Yes. Yes, good.
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। हरी बोल, परफेक्ट रिसाइटेशन जाने माता जी। जैसे भी जाने माता जी सिंग करके गाया ना, बिल्कुल ऐसे ही रिसाइट करते। वी सिंग द श्लोका so that we'll remember it for a very long time. Big Hari bol for you, Janya Mataji. Hari bol. So what we'll do is we'll end our today's class because we're already very late. And tomorrow we will be doing chapter 11, yet another very important chapter. आगे के chapter आपको बहुत interesting लगेंगे. क्योंकि इसमें ना बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन कृष्णा इज टेलिंग अबाउट, जैसे कि अबाउट द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, और एक चैप्टर में वो अपना उनको अपना यूनिवर्सल फॉर्म भी दिखाएंगे अर्जुन को. सो ऑल द चैप्टर्स विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. और आज का होमवर्क आप सबको पता है कि हमें एक सीनरी बनानी है. make a scenery and make the Krishna on them. And make Krishna on them. Yes. Perfect. क्योंकि कृष्णा is the source of all creation. Right? Excuse me, ma'am. हाँ जी, यश निष्का माता जी. Ma'am, can you tell the meaning of shloka that today you are learning? हाँ, yes, sure. Let me share my screen. माता जी, can I read? हाँ, yes, you can read, बेटा. Yes, go ahead. बेटा, पढ़ो. Who wanted to read? Read, बेटा. To those who are constantly devoted to serving me with love is I give the understanding by which they can come to me. Yes, हरी बोल. यानी कि जो भी who's constantly serving me with love and devotion, मैं उनको वो समझ देता हूँ, मैं उनको अंडरस्टैंडिंग देता हूँ, मैं उनको रास्ता दिखाता हूँ, जिसकी वजह से वो मेरे पास वापस आते हैं, है ना. हरी बोल. So बहुत ही इनफैक्ट चारों श्लोकों की मीनिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अच्छे हैं. सो इफ यू कैन लर्न ऑल द 4 श्लोका देन इट विल बी वंडरफुल. मैं आपको चारों भेजूंगी ग्रुप के अंदर. ट्राई करना, कोशिश करना याद करने की, ठीक है. Okay, Mataji. Okay. Today I do the closing Mataji, prayer. can I do today's ending prayer? हाँ, okay. all of us together because ना मेरी एक ऑफिस की कॉल भी स्टार्ट होने वाली है. So I have to join that as well. So हम इंडिविजुअली तो नहीं करेंगे पर इकट्ठे कर देंगे. Okay. Okay, Mataji. Okay, who wants to start? एकम सहस्त्रम देवकी पुत्र एकम एको मन्त्रस्यासि ज्ञानानि कर्मा हरि बोल. हरि. Ma'am, we have to not do the quiz today. एक्चुअली आज की क्विज हमारी ना वही थी जो हमने एक्टिविटी करी, बेसिकली टू अंडरस्टैंड कि जो हमने सारी चीजें बताई थी, एंड ऑल ऑफ यू वर एबल टू रिमेम्बर ऑल ऑफ दैट कि व्हाट ऑल थिंग्स कृष्णा सेज दैट आई एम. यू नो, कृष्णा सेज कि मैं सारे मौसम में कौन सा मौसम हूँ? स्प्रिंग. यस, दैट्स राइट. और कौन सारे महीनों में कौन सा महीना हूँ? माघ का महीना, बारिश का महीना. यस. और मैं सारे माउंटेन्स में से कौन सा माउंटेन हूँ? हिमालय. हाँ, एक्चुअली कृष्णा सेज मैं सारे माउंटेन मेरू माउंटेन हूँ. और मैं किसकी तरह दृढ़ हूँ? हिमालय की तरह दृढ़ हूँ. यस. और सारे नदियों में से मैं कौन सी नदी हूँ? गंगा नदी. यस. और सारी ध्वनियों में से मैं कौन सी ध्वनि हूँ? ओम. यस, ओम की ध्वनि हूँ. और सारी यज्ञों में मैं कौन सा यज्ञ हूँ? हरे कृष्णा, chanting the holy names. Yes, the Hare Krishna महामंत्र. So Krishna, and सारे पेड़ों में कौन सा पेड़ हूँ? बरगद का पेड़ हूँ, banyan tree. Yes. Perfect. So this was the actually quiz for today. This is not the quiz today. ठीक है? So we'll end the class and then we'll tomorrow. हाँ जी बेटा. Yes. Mataji, can you share the quiz? हाँ, yes, Vrinda Mataji, I will share definitely. Ma'am, is it on word wall? Today's quiz is not on word wall, but आज की quiz वही picture format में थी जो हमने करी थी. Okay. ठीक है? Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटा. Yes. Ma'am, do I make the video of the action and the chapter names of the
yes. So 1 to 10 अभी हमने 1 to 10 chapters कर लिया. If you can make a video of the chapter names of 1 to 10, then that'll be wonderful. क्योंकि आपका revision भी हो जाएगा. क्योंकि जब 18 हो जाएंगे ना तो बहुत सारे हो जाएंगे. So जब तक हम आधे हमने cover कर लिए तो आधे की video बना ले. तो if you can make it, then that'll be wonderful. I can make it and I will send it the group. हाँ, और एक peace formula की भी if you can make the video. Remember that हमने peace formula करा था. Who is Yes, God? Krishna is Krishna God. is God. The Shyam Krishna Sundar is the form. Shyam Sundar form with a peak of feather and a flute. Krishna is the supreme enjoyer. enjoyer. Krishna is the supreme controller. Krishna is Krishna our is best our well-wisher friend. Yes. So इसके भी अगर वीडियो बनाकर भेज सको, that will be wonderful. Ma'am, I have already sent to you. Okay, perfect. Thank you. Thank you. Mataji, the Vishnu Patra, I have done it like this. Mataji, just a second. हाँ. Yes, Mataji. Mataji, I've done it like this. Oh, very nice. Krishna and then Mahavishnu. I actually do it. I study like this. हाँ, so I yes, thought yes, yes. Very nice. Yes. Perfect. Exactly ऐसे ही बनाते हैं. महाविष्णु से गर्भदक्षाय विष्णु and then शिरोदक्षाय. Very beautiful. Mataji, the air is the planets and the water. हाँ, yes. Brahmaji, all have done that. Like this. Yes, perfect. इससे क्या होता है समझने में बहुत आसानी हो जाती है. Very nice, Yes, वाणी माता जी. माता जी मैंने लाइन वाइज लिखे थे समर कैंप में हरी लिखे थे. बोल. हाँ, very nice. हरी बोल. Perfect. Thank you, Mataji. Thank you. So we'll end the class today and then we'll meet tomorrow. Okay? Okay, ma'am. Bye, ma'am. Hare Krishna. Hare Krishna. Bye, Mataji. Hare Krishna. Bye, beta. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. Have a Gauranga day, beta.